Hello friends, very good afternoon. We'll start with PL SQL part 1 today. I hope my voice is visible to you all. Today we will cover PL SQL, that is part 1. Myself Mahesh Sangvi, working as Professor and Head Department of Computer Engineering at SNJB's Letso KB Jain College of Engineering. I hope you all must be enjoying this particular lecture series, and if you have any sort of difficulty, please let me know. These are the common instructions which I have already taken into each and every lecture. So let's move towards the today's agenda, and our today's agenda is we have to cover today the review of last session. Then we have to think about PL SQL basics. Then we'll see procedure, that is create and drop. Then we'll see how we can able to create function as well as we can able to drop the function. Cursors, how to create cursors and how we can able to drop the cursors. And finally, we will see the type of cursor, that is implicit cursor and explicit cursor. So when I'm talking about this particular topic, we need to think on the discussion on what review of last session where SQL queries we have covered. I hope you all remember the type of SQL query that I have covered is DDL, DML, DCL, DTL, all kinds of SQL queries are covered. In last session, we have seen the types of clauses where we have seen select clause, from clause, where clause, order by clause, group by clause, and having clause. So we have seen the all 6 clauses, and I hope you might have confidence to work out on this particular clauses. Practice for SQL is essential. If you work out on this particular commands, I hope more confidence will easily get built up because it is really very simple. Now regarding the other reviews, I hope you all are already aware about the fact that SQL has various commands and we can normally able to fire one command at a time on that environment like interpreter where one command is entered and immediately output of that command is what visible to us. Whereas this PL SQL, when I'm talking about basics of PL SQL, PL stands for, that you need to understand, PL stands for procedural language extension to what? SQL. So it is procedural language extension to SQL means block of command can be what given to this particular PL SQL. यानी हम लोग क्या कर रहे थे SQL में एक ही कमांड एट ए टाइम हम लोग फायर कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग क्या कर सकते हैं एक से ज्यादा कमांड्स यहाँ पर डायरेक्टली ग्रुप ऑफ, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ना वैसे ही आप यहाँ पे पूरा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इसका ये है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं पूरा प्रोग्राम सबमिट कर सकते हैं SQL में. So the way we have seen in any of the programming language, हमें ये पता होता है कि हम लोगों को फंक्शन डिफाइन करते आता है, प्रोसीजर डिफाइन करते आता है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स का यहाँ पे हम लोगों को इस्तेमाल करते आता है. सेम थिंग इज पॉसिबल विथ व्हाट PL SQL. So PL SQL is standard and what portable. Okay, it has what it has variety of syntax that we have seen into what SQL command itself. And another part that we have seen with what this PL SQL is what it is portable, means you can use this PL SQL at any of the platform. That is the beauty. Okay, so once you able to what you can able to port it at anywhere. It is an embedded language. Yes, you can embed it in any of the host language. So PL, the way you can able to embed SQL statement, same PL SQL statements can also be embedded into what any of the host language like C, C++, Java, Python, anywhere we can able to do that. It is high performance and highly integrated language. Yeah, its performance is very high. The moment you are entering the command, it is giving you what the outcome, though there will be what billions of records available into this. So that is what the beauty, that it is high performance language and highly integrated language, because you can integrate it anywhere. For example, for mobile programming also you can use what SQLite version of what this SQL. So it is actually what integrated language. It works on block of statement. Block of statement here, it means that we can able to give what group of statements here, and we can run that group of statement at a time. So that is what the programming environment or procedural language extension of what SQL. Code reuse is the best feature here. Importance of SQL is what you can able to reuse. Once you have created any sort of procedure or function, you can reuse that function again and again. So that's the beauty of what PL SQL. So this is all about what basics of PL SQL.
सो एवरीवन शुड अंडरस्टैंड पीएल एसक्यूएल में एग्जैक्टली क्या रहेगा। तो पीएल एसक्यूएल में आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि हम लोगों को जो भी कुछ हम लोगों ने एसक्यूएल में देखा है वह सारे कमांड्स आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दे सकते हैं। एसक्यूएल की केस में एक कमांड एट ए टाइम आप लोग दे पा रहे थे, यहाँ पे आप सारे के सारे कमांड्स एट ए टाइम जो भी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ व्हाट पीएल एसक्यूएल। So let's look at the programming environment where one should able to create the procedure first. यहाँ पर आप प्रोसीजर और फंक्शन दो पार्ट देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रोसीजर को क्रिएट कर सकते हैं पीएल एसक्यूएल में। सो प्रोसीजर को ही, जो पीएल एसक्यूएल में जो प्रोसीजर हम लोग क्रिएट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर, क्योंकि ये प्रोसीजर जो भी रहेगा वो आपका वहाँ पे हमेशा के लिए क्या रह जाएगा, स्टोर रहेगा। सो हाउ टू क्रिएट प्रोसीजर, सो लेट्स लुक एट ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट. So for creation of procedure, let's look at very first part that you need to do is what, create user table. सबसे पहले आपको यूजर का क्या करना पड़ेगा, एक टेबल जो भी है वो बनाना पड़ेगा। जैसे ही वो टेबल आप बनाओगे उसके बाद आप लोगों को स्टेप 2 जो रहेगा दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो यू नीड टू राइट अ प्रोसीजर कोड, यानी जो भी प्रोसीजर रहेगा उसका ब्लॉक जो भी रहेगा उसका कोड हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो जैसे फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं वैसे प्रोसीजर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। Then you can able to call that particular procedure. So process is very simple. Very first part is what you need to create user table, then write procedure code, and then you can able to what, call that particular procedure. तो आप सभी लोगों को ये पता होगा कि हम लोग नॉर्मली जब भी फंक्शन के बारे में भी बोलते हैं तो फंक्शन आप लोगों को पहले डिफाइन करना पड़ता है, ओके, डिक्लेयर करना पड़ता है, उसके बाद आप लोग उसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो वहाँ पे जैसे 3 प्रोसेसेस है वैसे यहाँ पे भी क्या है, ये 3 प्रोसेसेस है। स्टेप 1 क्रिएट यूजर टेबल, स्टेप 2 डिफाइन योर प्रोसीजर, step 3 call that particular procedure that you have created. So let's look at this particular part by using example how we can able to create procedure. For that the syntax is given like this. For create procedure you can use create or replace. Okay, this particular word means if you have to overwrite any of the process you can use replace, but if you are first time creating that particular process you can use create command. So create procedure name, parameter 1 comma parameter 2 comma parameter 3, likewise you can define n number of parameters here. So it's same like what function, only here there is no written value. Okay, so procedure with procedure name with parameters means what, the you can able to what provide arguments to what this particular procedure. Then its syntax is quite clear that is here in between is and begin block you can declare all kinds of things that you actually needed here. So declaration part will come into what, between is and begin block, and from begin block to end block you can give all the executable statements. But always remember, end is not simply end with what you need to give procedure name. So I'll again repeat the syntax: create procedure name, procedure name. You can give parameters, so that parameters can be given. This is optional. Okay, so it is given into square bracket, but you need to provide the parameter into what, round bracket. So once you have given the parameter, then you have to use is. There may be possibility that is can be blank because this is again optional. Okay, it is not mandatory that कि हमेशा डिक्लेरेशन कुछ भी रहेगा। तो आपको जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे इस फंक्शन में यूज करने हैं वो यहाँ पे आप लोगों को डिक्लेयर करने रहेंगे। देन फ्रॉम बिगिन टू एंड प्रोसीजर यू नीड टू व्हाट, जो भी आपको एग्जीक्यूट करवाना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। So let's look at example so that you will understand its use. So I have already told you there are 3 steps. So very first step will be what, we need to create one table. Okay, so we are creating that particular table, create table, user, ID, number 10. We have considered this ID as a primary key. So I am defining it as a primary key, name, and then varchar, and then we are taking it as 100. So हम लोगों ने ये टेबल जो भी है यूजर नाम का क्रिएट किया है। ओके, ये जो भी टेबल है उसमें हम लोगों ने क्या किया, आईडी को प्राइमरी की लिया है जो कि न्यूमेरिक फील्ड है, और नेम को हम लोगों ने varchar लिया है क्योंकि हम लोग कैरेक्टर वैल्यूज में लेना चाहते हैं। ओके, और आप लोगों को जैसे ही आप लोगों ने वो किया, स्टेप 2 क्या रहेगा, आपको प्रोसीजर डिफाइन करनी पड़ेगी। तो प्रोसीजर किस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्रिएट और रिप्लेस। तो आप क्रिएट प्रोसीजर, इंसर्ट यूजर, यानी हम लोग क्या करना चाहते हैं, ऐसा फंक्शन लिखना, ऐसा प्रोसीजर लिखना चाहते हैं कि जिसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज देंगे और वो क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। तो उसका नाम क्या रहेगा प्रोसीजर का, इंसर्ट यूजर। ओके, then I have particularly taken it into what in capital so that you will understand this is what the name of procedure. Okay, जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, और उसको हम लोगों ने 2 पैरामीटर पास किए हैं, एक आईडी एज अ नंबर। तो यहाँ पे इन का यूज करते हैं हम लोग। आईडी को जब भी डिफाइन करेंगे उसमें कौन सा वैल्यू आएगा, नंबर। तो आईडी में कौन सा वैल्यू आने वाला है, नंबर। और नेम इन varchar, यानी नेम में कौन सा डेटा आएगा, varchar नाम का। तो ये आपको समझना जरूरी है। तो ओपनिंग ब्रैकेट से लेके क्लोजिंग ब्रैकेट तक हम लोगों ने इसको किस तरीके से डिफाइन किया, आईडी इन नंबर, नेम इन व्हाट,
varchar। इसका मीनिंग ये है कि ये इनपुट वैल्यूज है जो हमारे पास आने वाली है। तो इन और आउट ये दोनों किस चीज के लिए काम आएगा? इन यानी क्या? वैल्यूज इन करने के लिए, और आउट यानी क्या? वैल्यूज को आपको यदि आउट करना है तो यहाँ पे फिलहाल ये इनपुट वैल्यूज रहने वाली है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन से दो वैल्यूज हम लोग पास करने वाले हैं? आईडी एंड नेम। देन इज और बिगिन, इसके बीच में मुझे कोई नया वेरिएबल नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए इज आ गया और डायरेक्टली हम लोग बिगिन लिख रहे हैं, इसके बीच में और कुछ नहीं आ रहा है। ओके, सो अब आएगा बिगिन। तो बिगिन में हम लोग क्या कर रहे हैं? इंसर्ट इनटू यूजर, यानी कौन से टेबल में हम लोग इंसर्ट इनटू कर रहे हैं? इंसर्ट इनटू यूजर वैल्यूज। कौन से वैल्यूज? जो आईडी और नेम हम लोग पास करने वाले हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को, सॉरी इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को। ये प्रोसीजर को कौन से दो वैल्यूज हम लोग इनपुट दे रहे हैं? आईडी और नेम। ये दोनों हम लोगों ने यहाँ पर लिया, आईडी एंड व्हाट? नेम। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आएगा कि हम लोग ये वाला पूरा एक फंक्शन लिख रहे हैं, इसका एक प्रोसीजर लिख रहे हैं जिसका नाम रहेगा इंसर्ट यूजर। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्रिएट प्रोसीजर इंसर्ट यूजर, ये प्रोसीजर का नाम है। आईडी इन नंबर, ओके, और नेम इन नंबर, यानी दोनों वेरिएबल्स जो है ये हम लोगों को इनपुट वैल्यूज जो भी है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। ईज और बिगिन के बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि मैं कोई नया वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो नहीं लग रहा है इस पर्टिकुलर फंक्शन, इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में। उसके बाद बिगिन और एंड हम लोगों ने लिया है। तो बिगिन में हम लोगों ने क्या किया? इंसर्ट इनटू यूजर वैल्यूज, ओके, और यहाँ पे आईडी और नेम, यानी इंसर्ट इनटू कमांड सिंपली हम लोगों ने दिया है, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज फिक्स नहीं किए। जो भी पास करने वाले इस प्रोसीजर को, वो वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पर लिए हैं, जो कि यूजर में इस रिकॉर्ड को क्या कर देगा? इंसर्ट करेगा। तो ये हो गया आपका स्टेप 2, वेयर वी हैव टू राइट द एंटायर प्रोसीजर कोड दैट वी हैव रिटन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज, ये जैसे ही करेंगे तो इससे क्या होगा? एक स्टोर्ड प्रोसीजर आप लोगों की क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी, और जैसे ही वो क्रिएट होगी आप उसको क्या कर सकते हैं? थर्ड प्रोसीजर इज व्हाट यू नीड टू कॉल दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। तो ये प्रोसीजर को किस तरीके से कॉल करेंगे? तो उसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। आपको बिगिन और एंड मींस आपका जो मेन फंक्शन रहेगा उसमें आप लोग इंसर्ट यूजर नाम का यहाँ पे कमांड ये कर रहे हैं। अब देखिए कैपिटल में हम लोगों ने दिया था, यहाँ पे स्मॉल में दिया तो भी चलता है, क्योंकि SQL इज नॉट केस सेंसिटिव एज पर एज कमांड्स आर कंसर्न। केस सेंसिटिव सिर्फ आप सिंगल कोटेशन में देते तो वहां पर होता है, यहाँ पर केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए आप इंसर्ट यूजर ऐसा भी कमांड दोगे तो भी चलेगा। जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? वैल्यू पास कर रहे हैं, दैट इज 101 एज अ नंबर, सो ये आईडी पास हो जाएगा, और नेम जो भी है दैट इज राहुल, ये पास होगा। और ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएगी? जैसे ही ये कमांड आएगा, ये क्या करेगा? यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आएगा कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ था, तो यहाँ पे कौन से वैल्यूज आएंगे? आईडी की जगह पे 101, और नेम जो भी है वो राहुल आएगा, और वो इंसर्ट इनटू में क्या हो जाएगा? एक रिकॉर्ड जो भी है वो इंसर्ट होगा। तो जैसे ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो हम लोग क्या एक मैसेज उसको देना चाहते हैं? ये रिकॉर्ड जैसे ही इंसर्ट होगा तो डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, और ये रिकॉर्ड हम लोग क्या कर रहे हैं? सक्सेसफुली इंसर्ट कर रहे हैं। तो आपको ये रिकॉर्ड जो भी आउटपुट में दिखाई देगा कि 101 राहुल, ये रिकॉर्ड क्या हो चुका है? इंसर्ट हो चुका है। लेकिन हम लोगों ने इंसर्ट इनटू कमांड यूज नहीं किया, हम लोगों ने कौन सा प्रोसीजर यूज किया? इंसर्ट यूजर। उसमें हम लोगों ने वैल्यूज पास किए, क्योंकि ये प्रोसीजर हम लोगों ने ऑलरेडी क्या करके रखा हुआ था? डिफाइन किया हुआ था, और उस प्रोसीजर को हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से 3 प्रोसेस आपको समझनी जरूरी है। कौन से टेबल के साथ में आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले वो टेबल आप लोगों ने ले लिया, जो प्रोसीजर आप लोगों को चाहिए वो प्रोसीजर आप लोगों ने क्रिएट की, और उस प्रोसीजर को आप लोगों ने क्या कर दिया? कॉल किया। अब स्टेप नंबर 1 आप लोग क्या कर सकते हैं? ऑप्शनल रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड होगा, तो आप डायरेक्टली स्टेप 2 और स्टेप 3 को ये करोगे, जहां पे आपको प्रोसीजर को डिफाइन करना है, और उसके बाद प्रोसीजर को सिंपली क्या करना है? कॉल करना है। प्रोसीजर को कॉल करने के लिए प्रोसीजर का जो नाम है वो, और उसको जो पैरामीटर्स आपको पास करने हैं वो आप लोगों को यहाँ पर पास करने होंगे। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग व्हाट? स्टोर्ड प्रोसीजर। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, जो प्रोसेस ऑलरेडी क्रिएट किए हैं और आप लोगों को लगता है कि वो प्रोसेस आपको नहीं चाहिए, तो ड्रॉप प्रोसीजर इज द सिंटैक्स, ड्रॉप प्रोसीजर एंड प्रोसीजर नेम। तो जो प्रोसीजर हम लोगों ने क्रिएट की है उस प्रोसीजर को आप सिंपली क्या कर सकते हैं? ड्रॉप प्रोसीजर, और उस प्रोसीजर का नाम जो भी रहेगा वो जैसे ही आप दोगे तो उससे उस प्रोसीजर को क्या किया जाएगा? डिलीट किया जाएगा। सो क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर इज यूज्ड टू क्रिएट the procedure, and drop procedure is used to remove that particular procedure that we have already created. Now the next part is function. So we are actually talking about 2 parts, stored procedure and function. So we have seen that how to create procedure, how to call that particular procedure. So creation and calling is important. Now we have to focus on what? function. दोनों में मेजर डिफरेंस नहीं है। ये बोला जाता है कि फंक्शन में इन और आउट दोनों पैरामीटर्स आएंगे, जिससे आपको ये समझ में आता है कि इनपुट वैल्यू आप ले रहे हैं या आप इसमें से कुछ वैल्यूज को आउटपुट करने वाले हैं, यानी कुछ रिटर्न वैल्यूज इसमें रहेगी क्या। तो इससे आपको समझ में आएगा डिफरेंस फंक्शन और प्रोसीजर में क्या है। प्रोसीजर
may or may not return what values, but function will what, it must return some value. This is what the difference between function and procedure. किस तरीके से फंक्शन को हम लोग क्रिएट करेंगे, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, प्रोसीजर के जगह पे क्या आ गया, फंक्शन, और फंक्शन का नाम, और उसमें आप लोग पैरामीटर्स जो भी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पैरामीटर्स कैसे रहेंगे, पैरामीटर का जो भी नाम है वो आपको देना है, फिर आपको देना है कि ये इन वाला है या सिर्फ आउट वाला है या दोनों है, इन और आउट। यानी क्या, इन यानी क्या, इट विल ओनली टेक वैल्यू, आउट यानी क्या, इट विल ओनली सेंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू, इन आउट यानी क्या, दोनों आप वही पर्टिकुलर वेरिएबल से करना चाहोगे। सो वो आपको देना है और उसके साथ में टाइप देना है। ओके, उसके बाद रिटर्न, कौन सा वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हैं, दैट रिटर्न अंडरस्कोर व्हाट डेटा टाइप, यानी आप वहां पर कौन सा ये फंक्शन कौन सा वैल्यू को रिटर्न करने वाला है वो आपको देना है। वो जैसे ही आप दोगे फिर यहाँ पे आप इज या एज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आइदर इज और एज। इन केस ऑफ क्रिएट प्रोसीजर वी वर यूजिंग व्हाट इज, यहाँ पर आप आइदर इज और एज का यूज करें, और जहाँ पे आप लोग और इसको जो इस फंक्शन में जो वेरिएबल्स लगने वाले हैं वो आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। देन यू यूज बिगिन एंड एंड ब्लॉक, जहाँ पे पूरे फंक्शन का बॉडी आप लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। तो दोस्तों क्रिएट फंक्शन ये जो भी है ये बहुत सिंपल है। क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम, उसको पैरामीटर्स आपको देने हैं। पैरामीटर्स तीन टाइप के हो सकते हैं, इन आउट या इन आउट, या इन आइदर इनपुट या फिर आउटपुट, या दोनों हो सकता है, इनपुट आउटपुट। यहाँ पे रिटर्न फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न मस्ट है, जहाँ पे रिटर्न और उसका डेटा टाइप आपको देना रहेगा। ईज का इस्तेमाल कर सकते हैं या एज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, और बिगिन और एंड में फंक्शन का पूरा बॉडी आप लोग दोगे। एग्जाम्पल जब देंगे तब आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगा। सो लेट्स लुक एट द फंक्शन कोड दैट वी आर एक्चुअली राइटिंग हियर। तो फंक्शन कोड किस तरीके से लिखा गया है वो आप समझिए। क्रिएट फंक्शन एडर नाम का एक फंक्शन है, जहाँ पे n1 नाम का एक वेरिएबल है जो क्या है, इन रहेगा, n2 जो भी है वो क्या रहेगा, इन रहेगा। दोनों इनपुट वैल्यूज हम लोग दे रहे हैं n1 और n2। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे दोनों के दोनों वैल्यूज हम लोग इन करके देने वाले हैं। सो फंक्शन प्रोसीजर जैसे ही हम लोग लिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर कंपलसरी पार्ट क्या आएगा, रिटर्न नंबर, यानी ये क्या करने वाला है, न्यूमेरिक वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ईज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे n3 नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसको हम लोगों ने नंबर और 8 कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने n1 को नंबर किया, n2 को नंबर किया, यहाँ पे n3 को भी क्या कर दिया, नंबर लिया। नाउ बिगिन n3 इज इक्वल टू n1 प्लस n2, यानी हम लोग एडर का प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो n1 और n2 दोनों के वैल्यूज ऐड किए जा रहे हैं, n3 में स्टोर किए जा रहे हैं, और उसको हम लोग रिटर्न करेंगे n3, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न वैल्यू हम लोगों ने क्या बोला है, उसका डेटा टाइप कैसे रहेगा, नंबर। तो n3 को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, रिटर्न करने वाले हैं। तो दोस्तों काफी सिंपल है, आप यदि ऑब्जर्व करोगे, क्रिएट फंक्शन एडर, ओके, जो पैरामीटर्स आपको इनपुट करके प्रोवाइड करने हैं उसको इन करके आप लोगों ने डिफाइन कर दिया। ओके, फिर रिटर्न भी आप लोगों ने क्या बोल दिया, नंबर बोल दिया। इज n3 number, begin n3 is equal to n1 plus n2 and return what, n3। तो ये फंक्शन आप रन करोगे तो आपको क्या होगा, ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू जो भी है n3 का, मींस इन दोनों का एडिशन जो भी है वो क्या कर देगा, यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर देगा। तो ये एज गुड एज आप लोगों ने सी में एडिशन का फंक्शन लिखा था, जो एक्चुअली वैल्यू क्या करता है, दोनों का एडिशन, जो नंबर होता है उनका एडिशन का जो भी है उसको क्या करता है, रिटर्न करता है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर किया है। तो इस तरीके से ये फंक्शन क्रिएट होगा, और इसको कॉल कैसे करेंगे, सेम वे। ओके, किस तरीके से हम लोग कॉल करते हैं, डिक्लेयर n3 इज इक्वल टू व्हाट, नंबर, n3 इज इक्वल टू व्हाट, एडर 11,22। ओके, जैसे ही ये करेंगे इसका एडिशन होगा, और एडिशन n3 में आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और डीबीएमएस में इसका आउटपुट जो भी है पुट लाइन के थ्रू आप लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन जो भी है उसकी क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर ये कॉन्कैटनेट साइन है, एडिशन इज कॉन्कैटनेटेड विद दिस पर्टिकुलर रिजल्ट विल बी व्हाट, एडेड। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से उस फंक्शन का नाम जो भी है वो आप ऐड कर रहे हैं। ये फंक्शन रिटर्न वैल्यू इसकी है, इसलिए आप n3 ले रहे हैं। अब इसके ऊपर फोकस मत करें कि कभी नंबर ले रहे हैं, कभी नंबर ऑफ 8 ले रहे हैं, कभी नंबर ऑफ 2 ले रहे हैं। ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। आप सिंपली नंबर भी दे दोगे सब जगह पे तो भी चलेगा, या फिर आप डायरेक्टली इंटीजर भी इसकी जगह पे दे दोगे तो भी चलेगा। ये आपको एक्चुअली जो भी डेटा टाइप्स है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर वर्कआउट करना होगा। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क हियर, और आई कैन कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो मैं आपको यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, हम लोगों ने जो फंक्शन क्रिएट किया है उसको हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया है। किस तरीके से कॉल किया, उस फंक्शन का नाम, उसमें जो 2 इनपुट पैरामीटर्स देने चाहिए थे वो हम लोगों ने दिए, और वो क्या कर रहा है, n3 ये वैल्यू क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, प्रोसीजर एंड फंक्शन। तो यहाँ पर एडिशन जो भी है वो क्या आएगी, एडिशन इज ये 33, ये क्या आएगा, डिस्प्ले जो भी है वो होगा, और ये स्टेटमेंट जो भी हो क्या हो जाएंगे, प्रोसेस होंगे। इसके बाद फंक्शन को ड्रॉप करना है तो सेम फंक्शन है जैसे प्रोसीजर को ड्रॉप करने के लिए था।
ड्रॉप फंक्शन एंड द नेम ऑफ व्हाट फंक्शन। इस तरीके से जैसे ही आप दोगे ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। ओके, सो दिस इज व्हाट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जैसे फंक्शन को या प्रोसीजर को क्रिएट कर रहे हैं वैसे दोनों को हम लोग को यहाँ पे क्या करते आएगा, ड्रॉप करते आएगा। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पीएल एसक्यूएल में, इसलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों का ये पर्टिकुलर पार्ट जो भी है वो कवर किया है। यहाँ पर अब टाइम है, कई बार आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टोर्ड प्रोसीजर एंड व्हाट फंक्शन। तो फंक्शन और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है ये आपको समझना जरूरी है। सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड stored procedure uses in out parameter whereas function uses in। ये उल्टा हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, in out ये सारे पैरामीटर्स कौन यूज करता है, फंक्शन। लेट मी चेक द नेक्स्ट थिंग, रिटर्न वैल्यू इज व्हाट आउट पैरामीटर, यहाँ पर रिटर्न्स अ वैल्यू यूजिंग रिटर्न, ये सही है। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं सिंपली ये वाला स्टेटमेंट जो भी है ये इधर का स्टेटमेंट था, ओके, और ये वाला स्टेटमेंट यहाँ आना चाहिए था। अब so I'll again run it. Okay, the difference between stored procedure and function will be what, uses in parameter, it uses in out as well as what, in out parameter। ये हम लोगों ने function का जो syntax है या procedure का जो syntax है उसी में देखा है। returns a value using what, out parameter, it returns a value using what, return, cannot be called from the function block of code, इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम प्रोसीजर ब्लॉक ऑफ कोड। यानी आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रोसीजर को हम लोग फंक्शन में कॉल नहीं कर सकते, लेकिन फंक्शन को हम लोग प्रोसीजर में बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर आपको ये समझना जरूरी है, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्रोसीजर में रिटर्न द वैल्यू, में रिटर्न द वैल्यू, बट फंक्शन मस्ट रिटर्न द वैल्यू। प्रोसीजर में return the value but function must return the value। this is what the difference that you need to understand। okay, so let's look at the next part, that is what, cursor। अब कर्सर क्या है और इसके बारे में क्या जानकारी हम लोगों को लेना है, that I'll tell you, but before this I just wanted to take the feedback today। ओके, इसके बाद ही मैं आगे जाता हूँ। ओके, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को मेरा यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप सभी लोग, अब आप सभी लोगों को ये सारी चीजें जो भी है वो समझ में आ रही है जो भी चल रहा है क्लास में। इफ यू हैव डाउट यू कैन प्लीज आस्क, या फिलहाल मैं पोल ले लेता हूँ आप सभी लोगों का, इट इज पोलिंग टाइम। ओके, मैं सबका पोल यहाँ पर ले रहा हूँ, इट्स टाइम फॉर पोल। जो YouTube के ऊपर यूजर्स है आप सभी लोगों को मैं पोल यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले पोल मैंने दिया है आप लोगों को, यू कैन सिंपली व्हाट, रन द पोल। जो लोग जूम के ऊपर है उन लोगों को भी मैं पोल प्रोवाइड कर रहा हूँ चैट विंडो के ऊपर। मैंने पोल दोनों जगह पे आप लोगों को दिया है, 1 मिनट का टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग पोल ओपन करें। फिलहाल उसके रिजल्ट्स जो मैच हो रहे हैं उसके ऊपर स्ट्रेस मत लीजिए, मैंने उसको चेक नहीं किया है, राइट रिजल्ट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो पोल आप लोगों को देना है।
आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, या आई एम सो सॉरी, मैंने एक्चुअली पोल आप लोगों के सामने डिस्प्ले किया था, रिजल्ट्स मैंने शेयर किए थे, और पोल के सही जवाब मैं एक्चुअली यहां पर बोल रहा था कि राइट आंसर लाइक विच स्टेटमेंट्स और इज और आर इनकरेक्ट, कौन से स्टेटमेंट सही है इसमें से। तो यहां पर फंक्शन हैज, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट, ये हम लोगों को देखना था। फंक्शन हैज ओनली इन पैरामीटर इज व्हाट रॉन्ग। ओके, ये वाला जो जवाब था ये क्या था, रॉन्ग था। सो दैट वाज एक्चुअली राइट आंसर, और 60% स्टूडेंट्स हैव गिवन व्हाट, राइट आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, stored procedure may return the value, function must return the value, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, बाकी बचे हुए तीनों ट्रू स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा था, फंक्शन हैज ओनली इन पैरामीटर, क्योंकि फंक्शन में इन पैरामीटर है, आउट पैरामीटर है, इन और आउट दोनों पैरामीटर है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इनपुट द एंट्री एंड गिव द रिजल्ट्स इन व्हाट वेरिएबल इन अ प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम लोग इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए एग्जैक्टली क्या यूज करते हैं, तो राइट आंसर इज व्हाट, इन एंड आउट। राइट आंसर क्या था, इन एंड आउट। इन किसके लिए, इनपुट के लिए, आउट किसके लिए, आउटपुट के लिए। तो ये उसका क्या है, सही जवाब है। 89% स्टूडेंट्स हैव गिवन व्हाट। My dear students, there is one more round of what checking your attentiveness. So I request everyone, मैं एक सवाल आप लोगों को करूंगा, आप सभी लोगों को चैट विंडो में उसका जवाब देना होगा। मैं एक सिंपल सा सवाल आप लोगों को कर रहा हूं, आप सभी लोगों को चैट विंडो में उसका जवाब जो भी है वो देना है। प्लीज टेल मी, DCL जो है, ओके, DCL जो लैंग्वेज है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। ओके, DCL लैंग्वेज जो भी है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस DCL लैंग्वेज में D डेटा है, C क्या है वो आप लोगों को लिखना है। L इज लैंग्वेज, DCL में C क्या है वो आप लोगों को चैट विंडो के ऊपर लिखना है। जो लोग आई होप माय वॉइस इज, यस माय वॉइस इज नाउ ऑडिबल। जो लोग यहां पर है जूम के ऊपर है, आप यहां पर लिखे। जो लोग यूट्यूब के ऊपर है, आप लोग यूट्यूब के ऊपर लिखे। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, DCL में C स्टैंड्स फॉर व्हाट। जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं उनके सबके जवाब सही है। मैं अटेंटिवनेस यहाँ पर चेक करना जरूरी समझता हूँ। फैंटास्टिक, डोंट कॉपी पेस्ट, डोंट कॉपी पेस्ट, राइट डाउन योर ओन। I'm happy that 21 students are there which are on what, YouTube, and 100 students here on what, Zoom. So wanted to see the charts, 100 charts into Zoom and 20 there. Okay, dear students, you can stop now. Thank you. Okay, so let's look at the next point. I just wanted to check your attentiveness, and I'm happy that many of you are what, attentive. Please be attentive. This is only for you and you. Okay, so let's look at on what cursor. Now the cursor name indicates, यहाँ पर आप सभी लोगों को ये पता होगा cursor यानी क्या, जहां पे हमारा करंट पॉइंटर होता है। जब भी हम लोग डेटा में कहीं पे भी कुछ भी लिखने जाते हैं, आप सभी लोगों को ये पता होगा कि यदि मैं MS वर्ड यूज करता हूँ, MS वर्ड यूज करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सबको कर्सर जो भी वो दिखाई दे रहा है, देखिए कर्सर यानी क्या, जहां से मैं लिखना चाहता हूं, हेलो। ओके, उसके आगे अभी ये कर्सर जो भी वो आ चुका है। आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल। No, sir. Okay, is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so here you can observe here, if I take this particular part and if I take what its font, bigger font, you can understand ये वाला लाइन जो आप लोगों को ब्लिंक होते हुए नजर आ रही है, दिस लाइन इज नोन एज व्हाट, कर्सर। और कर्सर का मीनिंग क्या होता है जनरल सेंस में, करंट पॉइंटर, यानी जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को वो पर्टिकुलर पॉइंटर क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। द वे द डेफिनेशन ऑफ कर्सर विच इज अवेलेबल हियर, same is applicable into what, your DBMS, okay, that is in your PL SQL.
ओके, तो कर्सर क्या करता है? तो कर्सर क्या करेगा? तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि कर्सर क्या करेगा। इट विल होल्ड टू योर करंट रिकॉर्ड, और करंट रिकॉर्ड को होल्ड करेगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको रिकॉर्ड इंसर्ट कहाँ करना है, या फिर आपको रिकॉर्ड कौन सा डिलीट करना है, या फिर आप कौन से रिकॉर्ड को क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। जहां पे कर्सर होगा वो वाले रिकॉर्ड को आप लोग क्या करोगे, आइदर एडिट करोगे, डिलीट करोगे, या फिर क्या करोगे आप लोग इस पर्टिकुलर जो भी ये है इसको क्या करोगे, अपडेट करोगे। सो कर्सर इज एक्चुअली यूज्ड फॉर दैट। तो कर्सर के बारे में और भी डिटेल जानकारी यदि हम लोगों को देखना है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक जो ये है ये दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पर देखिए, कर्सर इन एसक्यूएल इज टेम्पररी वर्क एरिया। ओके, ये क्या है? एक टेम्पररी वर्क एरिया है क्रिएटेड इन द सिस्टम मेमोरी व्हेन एसक्यूएल स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। एसक्यूएल स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होता है, एक टेम्पररी मेमोरी एक्चुअली हम लोग की बनती है, उस टेम्पररी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। ओके, एसक्यूएल कर्सर इज सेट ऑफ रोज टुगेदर विथ पॉइंटर दैट आइडेंटिफाइज द करंट रो। तो करंट रो को जो पॉइंट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्सर। दिस आई हैव ऑलरेडी क्लियर टू यू। ओके, सो हमें ये समझ में आना चाहिए कि कर्सर हैज टू टाइप्स, one is implicit cursor and another one is what? Explicit cursor। तो इसके दोनों टाइप मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या किए हैं, प्रेजेंटेशन में दिखाया है। कर्सर is actually what? It is the pointer which is pointing to what? Your current row. It has two types, one is implicit cursor, another one is what? Explicit cursor। Now let's look at what exactly is what cursor and its attributes। तो कर्सर में कौन से attributes होते हैं? फर्स्ट attribute is what? Percentage found, then percentage is open, परसेंटेज नॉट फाउंड, परसेंटेज रो काउंट। ये परसेंटेज एक्चुअली एट्रीब्यूट जो है वो आप लोगों को समझ में आएगा कि परसेंटेज से हम लोग एट्रीब्यूट को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। तो कौन से टाइप्स के एट्रीब्यूट्स यहाँ पर है? यहाँ पर फाउंड, इज ओपन, नॉट फाउंड, रो काउंट ऐसे एट्रीब्यूट्स है। ओके, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स क्या है और भी डिटेल में क्या करूंगा, नेक्स्ट मेरा जो भी सेशन है वहां पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, कर्सर से शुरू करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को कम से कम कर्सर का कंसेप्ट क्या है वो समझ में आया रहेगा। Cursor is what? It is one of the pointer pointing to current row of what? Database or table or relation. So that is actually what cursor, and cursor has what? It has two types that we need to understand, that is implicit cursor and explicit cursor. So from tomorrow, in my tomorrow's session, I'll clear you what exactly is cursor and what are its two types, that is implicit and what? Explicit cursor. I hope you must have enjoyed the lecture. If you have any doubt, you can please ask on what? Chat window. You can ask your doubt in chat window. Those who have doubt can ask on what? Chat window. I'm checking on what? Chat window of your YouTube also. Only 1 minute is remaining. If you have doubt, you can please ask on chat window. आपको कुछ डिफिकल्टी है, आप लोग चैट विंडो के ऊपर पूछ सकते हैं। Okay, dear students, time is off, and if you have any sort of difficulty, you can ask me later on as well. So thank you all. I hope you must have enjoyed the lecture, and if you have any sort of difficulty, please let me know. मैंने अटेंडेंस भी आप लोगों को दिया था, अटेंडेंस भी आप सभी लोगों ने फिल किया हुआ है। ओके, सो सी यू टुमारो। ओके, आप सभी लोगों को कल हम लोग फिर से यहाँ पर कर्सर जो भी है, इम्प्लिसिट कर्सर और एक्सप्लिसिट कर्सर क्या है, ये डिटेल में हम लोग देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।